I'm Neetu Jivrajka. Chairperson of the Library Committee of PhD Chamber of Commerce. On behalf of PhD CCI and the Library Committee, I extend a very warm welcome to our two distinguished guests and eminent speakers, the dynamic Mr. Neeraj Kumar, ex-Commissioner of Police Delhi, and the charismatic Mr. Shams Tahir Khan, Senior Executive Editor, Crime Head, Aaj Tak. Welcome, sir. Thank you. A very warm welcome to our President, Senior Vice President and Vice President, former Presidents, Secretary General, and all the distinguished guests today. In these unprecedented and trying times, Zoom interactions have been a blessing and have kept us connected. The R.E. Walker and J.C. Chandiok Library is a cafe, lounge, and bar with gourmet catering to provide facilities to members of the Chamber for Business Development in an exclusive environment, which is elegant and cost-effective with a professional ambience. It was started in October 2015 under the presidentship of Mr. Alok Shriram. It's a humble privilege to have a guest today on the eve of starting our 75th year of independence. This independence, which we enjoy, is due to the security and protection provided by the law and order fraternity, the armed forces, and the media. We are grateful to your sacrifices as we live a life of independence. Thank you. I now request our President, Mr. Sanjay Agarwal, to give his keynote address and introduce our guests. A very good evening to you all. It gives me a great pleasure to welcome our former presidents and managing committee members for a fireside chat show with our guest speaker, Mr. Neeraj Kumar, the ex-police commissioner, and our host speaker, Mr. Shams Tahir Khan, senior executive head of Aaj Tak. I also extend a warm welcome to all the other eminent guests and participants. The challenges this year have been many. We are facing some of the most complex of these for the last year and a half. The COVID-19 pandemic has had an unprecedented disruption in our lives. It has been a health challenge of such massive proportions, which we have not faced in the last 100 years. Tomorrow marks the 75th year of independence, and we are proud to be able to host this discussion with you all today. In the words of our respected Prime Minister, Mr. Narendra Modi, India has a rich tradition of communities taking lead to solve challenges faced by an era. We have all worked hard in tandem to wade through these trying times. And we have all done our bit to not only keep ourselves safe, but I think most of us have tried in some manner or the other to help others remain safe. As a chamber, PSD Chamber of Commerce and Industry has been around for 116 years, and we have always been diligently working with the government shoulder to shoulder in nation building and have been on the fore of this fight against the pandemic, reeling in all our resources to bring relief, for which I would like to thank many of you present here today. I must say that our members have never hesitated in coming forward and helping the chamber do its bit in these difficult times. The members of our chamber have contributed more than 528 crore rupees during this pandemic to the PM CARES Fund. We have been able to arrange 10 oxygen plants, each with the capability of serving more than 100 patients in a hospital. And in addition, have distributed huge quantities of dry rations, cooked food, masks, sanitizers, and a lot of other manner of relief across the nation. Now, I would like to take this opportunity to introduce Mr. Neeraj Kumar, our chief guest for the evening, who was the former police commissioner of Delhi. He is a 1976 batch IPS officer of the Arunachal, Goa, Mizoram, and Union Territories cadre.
In his career, spanning 37 years, 9 of which were in the CBI, Mr. Kumar has held several key posts and served in several key assignments before retiring as the Commissioner of Police, Delhi in 2013. Mr. Kumar has cracked several high-profile cases and brought dreaded gangsters, economic offenders, and terrorists to book. He is a recipient of many police medals for distinguished and meritorious services. Mr. Neeraj Kumar led the CBI investigation into the serial bomb blast of 1993 in Mumbai and arrested over 20 absconders. He is credited with the arrest and deportation of the American Center attacker Aftab Ansari from Dubai, and then the nabbing of the Gujarat underworld don Abdul Latif. In the infamous Nirbhaya case, he brought the culprits to book in record time. Mr. Kumar served as a chief advisor to BCCI in their anti-corruption and security unit. Under his leadership, the spot fixing scandal in IPL 6 was unearthed and 3 high-profile Indian cricketers were indicted. As DG Prisons, he is remembered for his innovative steps for the welfare of inmates and improving the management of jails. Mr. Kumar has authored 2 books and has been the main architect for the Netflix series Delhi Crime. Mr. Shams Tahir Khan, the senior executive head of Aaj Tak TV channel, is one of the most popular anchors in the genre of crime reporting in India. Shams started off as a crime reporter in 1993 with the Hindi daily Jansatta. In the year 2000, he joined TV Today Network. He gave a new dimension to crime reporting on Indian television. Under his supervision, Aaj Tak launched a crime show, Raz, based on the use of forensics in solving crime. Mr. Tahir Khan investigated the various crimes committed by Jaish-e-Mohammed chief Maulana Masood Azhar from Air India hijacking to the attack on Pathankot Air Base. Shams is best known for his unique approach in covering crime with a humane touch and has received numerous awards for his reporting, including for Sushant Singh Rajput murder case. With these words, I once again welcome you all to today's session. I am sure you'll enjoy and participate with your questions, thoughts, and suggestions. Thank you. Thank you, Bhaiya. Thank you, Sanjay ji. Thank you. Now Thank I you, request Mr. Khan Sahab, please take over and the floor is all yours. थैंक यू, शुक्रिया आप तमाम लोगों का एक तो बुलाने के लिए, और नीरज कुमार साहब के साथ बड़ा पुराना रिश्ता रहा, और ख़ास तौर पर जो 2 किताबें इन्होंने लिखी उसको पढ़ के बड़ी खुशी हुई। एक थोड़ी सी खलिश अफसोस भी था कि पहले उन्होंने ये सारी बातें क्यों नहीं बताई, तो हम लोग एक्सक्लूसिव हो जाती कुछ। लेकिन क्राइम रिपोर्टिंग में एक चीज़ हमने सीखी हमेशा, हमारा पुलिस वालों के साथ रिश्ता कैसा होता है। मेरा अपना मानना है कि बहुत ज़्यादा नज़दीकी रिश्ता भी नहीं होना चाहिए, एक प्रोफेशनल होना चाहिए, लेकिन ना चाहते हुए भी मियाँ बीवी टाइप का रिश्ता बन जाता है, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से लड़ते भी हैं, कई बार खबरों को लेकर, कई बार और चीज़ों को लेकर। लेकिन नीरज कुमार जी को मैं 20 साल से शायद ज़्यादा से जानता हूँ। इनकी ज़िंदगी के 2 हिस्सों में मैं बांट सकता हूँ, एक पुलिसिंग और दूसरी सीबीआई। पुलिस में इन्होंने लंबा वक्त गुजारा, लेकिन सीबीआई में जो इन्होंने किया उनमें से कई चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि वो हमेशा एक यादगार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नीरज जी। और शुरुआत करूंगा आज, चूंकि लॉर्ड्स में मैच चल रहा है, इंडिया सेकंड टेस्ट, पहला टेस्ट शायद हम जीतते जीतते रह गए अगर आखिरी दिन मौसम खराब ना होता। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपकी किताब में डी फॉर डायल डॉन में एक जगह आपने मेंशन किया था कि जो मीडिया और लोग हैं वो इंग्लैंड के मौसम की तरह होते हैं, पता नहीं कब बदल जाते हैं। तो मैं यही आपसे जानना चाहता हूँ कि मीडिया से आपको कोई खास शिकायत थी, या फिर आपको लगता था कि जो पुलिसिंग है, जिस तरीके की खबरें होती हैं और वो करते हैं, आपको लगता है कि वो गलत थी? क्योंकि मीडिया से जुड़ा हूं तो पहला अपनी ऊपर आता। तो ये मीडिया को मौसम से क्यों जोड़ा था आपने? इसके पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, सबसे पहले मैं पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन लोगों ने हम लोगों को आज इस मंच पर बुलाया, ख़ासकर प्रेजेंट प्रेसिडेंट, पास्ट प्रेसिडेंट्स, और विशेषकर नीतू जी का, जिन्होंने
मुझे याद किया और हम लोग आज इस मंच पर इकट्ठे बैठे हैं। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि शम्स ताहिर खान से बेटर, से ज़्यादा उम्दा कोई ऐसा इंटरव्यूअर या कोई ऐसा एंकर या कोई ऐसा बातचीत करने वाला क्राइम रिपोर्टिंग में, क्राइम जगत में ऐसा कोई बहुत कम ही ऐसे लोग रहे हैं जैसा कि शम्स ताहिर खान के साथ मेरा अपना तजुर्बा रहा है। तो मैं अपने को बहुत खुश नसीब समझता हूँ कि आप मेरे साथ बात कर रहे हैं। जहाँ तक रहा मीडिया की बात, मैंने कई सारे बदलते हुए आयाम देखे हैं मीडिया के एटीट्यूड और मीडिया के जो पुलिस के साथ संबंध होते हैं उसमें। मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ क्योंकि शुरुआती दौर में मीडिया का इतना ज़्यादा प्रकोप नहीं था जितना कि धीरे धीरे बन गया है। और शुरू में जब मुझे याद है, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, साउथ दिल्ली में एक क्रिमिनल ट्राइब ऑपरेट किया करते थे और हर महीने 2 महीने पर एक बड़ी संगीन अपराध का अंजाम देते थे। उस क्रिमिनल ट्राइब का नाम पारदी है। अब तो खैर क्रिमिनल ट्राइब कहना उचित नहीं है क्योंकि वो एक्ट ही एबॉलिश कर दिया गया है। लेकिन जब वो स्ट्राइक करते थे तो पूरे फैमिली को पहले मारते थे और फिर घर को लूटते थे। एक एक वारदात में फादर, मदर, डॉटर, सन सबको मारते थे। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर वैसी घटनाएं आज घटती तो क्या होता। और मीडिया, खासकर जो टेलीविजन चैनल्स हैं, उसको किस तरह से कवर करती और पुलिस की क्या दुर्दशा होती। तो उस समय भी मीडिया थी लेकिन इतनी हावी नहीं थी, मैं कहूँगा, पुलिस के काम पर। वो आकर, तो ये अच्छा है या बुरा है सर? नहीं, मैं उस पर आता हूँ। तो वो आकर क्राइम सीन को डिस्टर्ब नहीं करती हैं। कई दफा तो आजकल मीडिया पुलिस से पहले पहुंच जाती है और ये तो गनीमत है कि क्राइम होने के पहले नहीं पहुंच जाती है। लेकिन वो दिन भी लगता है दूर नहीं है। लेकिन उस समय और इस समय में फर्क यह है कि बहुत जल्दी मीडिया आती है और कई दफा क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ करती है। और अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं हुआ कि कहने लगती है कि ऐसी घटना घट गई, अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ, 3 घंटे गुजर गए, पुलिस को कोई सुराग नहीं है, पुलिस इज क्लूलेस, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो बात यह है कि मीडिया के होने से फायदे ये हैं कि पुलिस को अपने बहुत चुस्त रहना पड़ता है, बहुत अपने टोज पर रहना पड़ता है और रिजल्ट्स जल्दी दिखाने पड़ते हैं। और मीडिया से ये भी होता है कि पुलिस के काम में बहुत ज़्यादा खलल पहुंचता है और बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होता है और मीडिया को संभालना एक बहुत बड़ा काम होता है जिसमें कई दफ़ा पुलिस ठीक से करती है और कई दफ़ा नहीं करती है। आजकल मैं देख रहा हूँ एक दिल्ली पुलिस के साथ खासकर, वो लोग बिल्कुल ही बॉदर नहीं करते। मैं आपको फिर एक उदाहरण देता हूँ। अभी इतना बड़ा कल या परसों एक आम सीजर हुआ ईस्ट दिल्ली में और लोग जानना चाहते हैं उसके डिटेल्स, उसके बारे में चाहते हैं कि कोई पुलिस का अफसर आकर चैनल पर कुछ कहे, कोई सवाल पूछा जाए उसका जवाब दे। कोई सामने नहीं आता। जो उनके पीआरओ भी हैं वो भी अक्सर सामने नहीं आते। और मीडिया के लोग मुझे फोन करते हैं। कल मुझे रिपब्लिक चैनल पर जबरन उन्होंने कहा कि सर कुछ तो बोल दीजिए, आप दिल्ली पुलिस के पुराने कमिश्नर हैं, आप कुछ तो बोल दीजिए, हाँ, हम लोग आपसे 1-2 सवाल पूछेंगे। तो कुल मिलाकर ये है कि मीडिया के शामिल होने, इतने एक्टिव होने से पुलिस के काम में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस भी है। और उसका उसका एक अच्छा पहलू ये है कि मीडिया, पुलिस को बहुत चुस्त रहना पड़ता है। उनकी हर मूवमेंट की खबर मीडिया को होती है, वो पूछती है।
तो बहुत अच्छा काम और तुरंत रिजल्ट दिखाना पड़ता है। निर्भया में भी यही हुआ था। जी मैं उस पर आऊंगा। हाँ। 2 चीजें आपने अभी जो जिक्र किया कि अब पुलिस वाले बोलते नहीं है। अगर मैं दिल्ली पुलिस की बात करूं, बस्सी साहब शायद लास्ट पुलिस कमिश्नर थे जो इंटरव्यू देते थे या बात करते थे। उसके बाद जितने भी आए उन्होंने कभी मीडिया से बात नहीं की। एक नंबर 2, जो लास्ट 2 कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली के हुए, अगर एस एन श्रीवास्तव जी की बात करूं या फिर अभी बालाजी श्रीवास्तव, दोनों को सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक तरह से एक्टिंग पुलिस कमिश्नर बनाया। ऐसा दिल्ली में कभी हुआ नहीं। एक पुलिस अफसर को पता है कि ये रिटायर होना ये डेट है, उसके बावजूद आप उसको एक्टिंग बना रहे हैं। ये सही है या गलत है? क्योंकि आप जब ये करते हैं तो कहीं ना कहीं फिर बात जो पॉलिटिकल प्रेशर और बाकी चीज़ों की आती है कि आप एक तरह का प्रेशर है कि आप हमारे हिसाब से काम करोगे तो कंटिन्यू रहोगे वरना हट जाओगे। और यही हुआ। एस एन श्रीवास्तव को 1 महीना पहले उन्होंने परमानेंट किया, बालाजी श्रीवास्तव को बनाया और फिर हटा दिया और अब नए पुलिस कमिश्नर बना दिया, वो भी जब वो रिटायर हो रहे थे उससे 4 दिन पहले। ये सही ट्रेंड है? मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि ये सरासर गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए और इसका असर पुलिस के मोराल पर, पुलिस के ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप पर, पुलिस के मोटिवेशन लेवल पर सीधे तौर पर पड़ता है और ये नहीं होना चाहिए। आपने अपनी 2 किताब लिखी, डायल डी फॉर डॉन और खाकी फाइल्स। तमाम जो बड़े केसेस थे सॉल्व, उसको आपने उसमें बताया। पर मुझे लगता है एक पुलिस अफसर के तौर पर या क्राइम रिपोर्टर के तौर पर भी, अगर इतने लंबे सालों में बहुत सारी चीजें हुई, शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो निर्भया केस को भूलना चाहेगा। दिल्ली जैसे शहर में, देश की राजधानी, एक 4, 5, 6 लोग एक बस में, वो भी वीवीआईपी सारे रूट्स हैं जहां जहां से वो बस गई थी, और ऐसा भी नहीं कि 12, 1, 2 बजे रहा है रात के, 8, 9 बजे की बात है। इस तरीके से एक लड़की के साथ गैंगरेप होता है। आप उस वक्त पुलिस कमिश्नर थे। पुलिस को छोड़ दीजिए, क्योंकि आपकी बेटियां भी हैं, एक गार्जियन, एक बाप की तरह या तौर पर जब यह खबर पहली बार आई, तब आपको क्या लगा था? देखिए, मैं सच्ची बात बताऊंगा, मुझे लगा एक बहुत जघन्य अपराध हुआ है और हमारा फर्ज बनता है कि उसको हम सॉल्व करें। पहली बात तो ये है, टोटली ब्लाइंड केस था, हमें कोई सुराग नहीं था। तो एज अ पुलिस ऑफिसर मेरे अंदर जो एक डिटेक्टिव बैठा हुआ है वो बिल्कुल जग गया बीच रात में, और उसको ये लगा कि जल्दी से जल्दी ये केस सॉल्व करना है। मुझे और किसी चीज की परवाह नहीं थी। और देखिए, अगर आप उस केस का विश्लेषण करेंगे, जो कि विश्लेषण एक जुडिशियल कमिटी ने किया, उषा वर्मा जी ने, जस्टिस उषा वर्मा जी ने उस केस का पूरा जुडिशियल इंक्वायरी की। उन्होंने भी कहा कि कोई ऐसा कदम जो पुलिस उठा सकती थी, वो कदम कोई ऐसा मिस नहीं हुआ जिसकी वजह से ये रेप हुआ। There was no way, the truth is that there was no way this crime could have been prevented. इसको रोका नहीं जा सकता था, लेकिन कहते हैं कि वैसे भी रेप 95% 4 दीवारी के अंदर होता है, हर घर में पुलिस तो पहुंच नहीं सकती। लेकिन एक दूसरा पहलू ये भी है कि एक लॉ एंड ऑर्डर, एक पुलिस का खौफ, एक दहशत होनी चाहिए कि अगर कोई क्राइम करता है तो मैं बच नहीं पाऊंगा। आपको लगता है वो मिसिंग है, इसीलिए क्रिमिनल के हौसले बढ़े हो और वो इस तरह की वारदात करता है? आपने खुद कहा कि 95% केसेस घर के अंदर होते हैं, और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि 97% रेप केसेस वर्कआउट होते हैं। और लेकिन वर्कआउट होने से या लोगों के बुक होने से ऐसा कोई असर नहीं पड़ता है कि लोग क्राइम ना करें। ये एक अपॉर्चुनिस्टिक क्राइम है। एक कई दफ़ा ऐसा होता है कि ऐसे हालात होते हैं जिसमें कि जो रेपिस्ट है, जिसके मन में वो एक वहशी बैठा हुआ है, वो उस मौके का फायदा उठाता है और वो ये क्राइम करता है। तो मैं ये कहूँगा कि रेप को प्रिवेंट करना बहुत ही मुश्किल है, और प्राइवेट स्पेसेस में जो रेप्स होते हैं उसको खासकर। और दुख की बात तो ये है कि ज़्यादातर रेप्स जो हैं वो विक्टिम के जानने वाले लोग करते हैं, जो नज़दीकी रिश्तेदार होते हैं, उनके टीचर, उनके कजन्स इत्यादि इत्यादि में। नोन पर्सन होते हैं, लेकिन अगर ये है कि 4 दीवारी में होता है, नोन पर्सन होते हैं, रोकना मुश्किल है।
लेकिन आपने कहा 97% सॉल्व होते हैं, लेकिन नीरज जी एक फैक्ट ये भी है जो लेटेस्ट डेटा है, 75% रेप के केसेस में कन्विक्शन होता ही नहीं है, सिर्फ 25% है। मतलब अगर 4 रेप होता है तो उसमें से सिर्फ आप मानिए कि 3 बरी हो गया और 1 बच गया। तो इससे कहीं ना कहीं क्रिमिनल को भी हौसला बढ़ता है कि अदालत या कानून पुलिस हमारा क्या कर लेगी। मैं ये नहीं मानता कि ऐसा, लेकिन ये डेटा है 25% ठीक है। नहीं, आपके डेटा से मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि उसकी वजह से रेप होता है क्योंकि लोग छूट जाते हैं, ये कंक्लूजन वाजिब नहीं है। लेकिन ये है कि कोर्ट में क्यों सफलता नहीं मिलती है, उसके कई कारण हैं। आप भी जानते हैं, आप क्राइम रिपोर्ट करते हैं, किस तरह से विक्टिम्स को जीता जाता है और विटनेसेस को इंटिमिडेट किया जाता है, और भी जो कुरीतियां हैं कोर्ट्स में, प्रोसिक्यूशन में, इत्यादि इत्यादि। तो सब कुछ मिला जुला के ये कहना पड़ेगा कि जो पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है रेप से मुतल्लिक, वो उस पूरे को सुधारना पड़ेगा। अब खुले कोर्ट में एक छोटी सी बच्ची से पूछा जा रहा है कि ऐसी ऐसी चीजें पूछी जा रही हैं जो नहीं पूछी जानी चाहिए, तो आप क्या उम्मीद करते हैं वो कैसे कहे? किसी एक रेप विक्टिम के साथ जो जिस प्रोसेस उसको गुजरना पड़ता है वो रेप से भी ज्यादा बदतर है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ एज ए पुलिस ऑफिसर, और कोर्ट के लोग भी जानते हैं। तो जो ट्रायल का प्रोसेस है वो इतना खराब और इतना गंदा है, जिसको सुधारने की जरूरत है। और अगर हम कन्विक्शन रेट को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हमें प्रोसिक्यूशन को, हमें कोर्ट्स को और पूरी व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। और बदल बहुत जल्दी हम लोग को चाहिए कि हम इसको बदलें। 16 दिसंबर 2012 को करीब 9 साल हो गए। उस वक्त आप थे कमिश्नर और इस फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाया। 9 महीने के अंदर निर्भया का जजमेंट आ गया था फास्ट ट्रैक कोर्ट ने, उसने सबको फांसी की सजा दी। लेकिन फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट और अभी 2020 में जाकर वो फांसी हुई 4 को। तो क्या सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट बना देने से मसले का हल हो जाता है? क्योंकि उसने तो 9 महीने में फैसला सुना दिया, लेकिन फिर उसके बाद हाई कोर्ट 3-4 साल ले रहा है, फिर सुप्रीम कोर्ट 3-4 साल ले रहा है, तो मामला तो वहीं आकर रुक गया। आप मेरी बात की पुष्टि कर रहे हैं, तो यही तो मैं कह रहा हूं कि ये जो जुडिशियल रिफॉर्म है, क्यों इतना टाइम लगा उसके अपील को सेटल करने में? हाई कोर्ट में क्यों इतना टाइम लगा? क्यों इतना टाइम लगा सुप्रीम कोर्ट में इसको डिस्पोज ऑफ करने में, या उसके बाद फिर मर्सी पिटीशन इत्यादि इत्यादि? ये सब 1 साल के अंदर हो जाना चाहिए था मैक्सिमम, और जगह इससे भी कम समय में हो जाता है। तो आप जो कह रहे हैं वो मेरे तर्क का पुष्टिकरण ही है। निर्भया केस में आखिरी सवाल एक आपसे कि जब ये हुआ पूरे देश में लगभग उस वक्त मोमबत्तियां जली, अजीब तरह का गुस्सा था पूरे देश में। शीला दीक्षित चीफ मिनिस्टर थी दिल्ली की, और कहते हैं वो बड़ा नाराज थी और आपको वो पुलिस कमिश्नर से हटाना चाहती थी। ये सही है? बिल्कुल सही है, इसका जिक्र मैंने अपनी किताब में भी किया है। क्यों हटाना चाहती थी? आपने तो सॉल्व करके पकड़ भी लिया था अगले 3-4 दिनों में सब। उसके पीछे बहुत सारी पॉलिटिक्स है जो आज तक चल रहा है। चीफ मिनिस्टर हमेशा ये चाहते हैं, और वो तो खासकर चाहती थी कि पुलिस उनके अधीन हो। दिल्ली की पुलिस राज्य सरकार या दिल्ली सरकार के अधीन नहीं है, और थैंक गॉड की नहीं है। मैं अभी जिक्र ही कर रहा था कि जिस दिन वो लोकल गवर्नमेंट के अंदर आ गई, उस दिल्ली पुलिस का वही हाल होगा जो अन्य राज्यों की पुलिस का। ऐसा क्यों सोचते हैं आप? नहीं, क्योंकि इंटरफियरेंस लेवल जो है लोकल पॉलिटिशियंस का, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। आज के दिन में दिल्ली पुलिस पर लोकल पॉलिटिशियंस का कोई प्रभाव नहीं है। अभी सिर्फ नॉर्थ और साउथ ब्लॉक का प्रभाव है। नहीं, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो रोज के रोज चीजों में वो इंटरफियर करें। उनको पूरा देश संभालना है। इनफैक्ट एक और भी किस्सा है, चूंकि बात चली कि एक होम मिनिस्टर मुझे यहाँ पर SHOs की पोस्टिंग को लेकर मेरे से बड़े नाराज रहते थे, क्योंकि वो नाम देते थे और कहते थे कि इसको यहाँ लगाओ, उसको वहां लगाओ, और मैं उनको मना करता था। और मैं उनको यही कहता था, सर आप पूरे देश के होम मिनिस्टर हैं, अगर आप सारे थानों की पोस्टिंग करवाने लगे तो आप कैसे करेंगे अपना काम? एक दिन मैंने उनके मुंह पर कह दिया,
तो मैंने कहा SHOs यहाँ पर कौन लगेगा या कौन नहीं लगेगा, ये बात आप मुझ पर छोड़ दीजिए। तो इसमें बहुत खफा रहे, बाद में वो मेरे पीछे भी पड़े, वो बात आप जानते हैं। इसका और किसका मतलब है जो जिक्र, परमवीर सिंह मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने जो इल्जाम लगाया था महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख पर, कि सारे थाने से उगाही करनी है, हर महीने इतने लाख रुपए चाहिए, मतलब ऐसा होता है, इसलिए उन्होंने शायद कहा। अब देखिए, मैं बम्बई के बारे में या मुंबई पुलिस कमिश्नर और वहाँ की व्यवस्था के बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन दिल्ली के बारे में मैं बहुत एम्फेटिकली कह सकता हूँ कि आज तक हिस्ट्री है कि यहाँ किसी भी होम मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसी कोई इच्छा जाहिर नहीं की, और ना ही कहा कि इसको यहाँ लगाओ और वहां लगाओ। ये बस एक मेरे हिसाब से बस एक गृह मंत्री थे जिन्होंने इंटरफेयर करने की कोशिश की, और वो भी अपने पर्सनल स्टाफ के मिली भगत की वजह से। अपनी इंडियन पुलिस या दूसरी जो एजेंसियां, हर एक की एक ही तमन्ना है, और वो है कि सबसे बड़े डॉन को इंडिया लाना। मैं दाऊद इब्राहिम की बात कर रहा हूँ। आपने भी काफी कोशिश की। जून 2013 में जब आप रिटायर हो रहे थे, तब आखिरी बार दाऊद ने आपको फोन करके धमकी भी दी थी एक तरह से, वो क्या किस्सा था? देखिए, उसके साथ मेरा पाला पड़ा था 1993 ब्लास्ट में। 2003-4 तक काफी उसके साथ, उसके पीछे हम लोग लगे रहे। और जब याकूब मेमन और मेमन ब्रदर्स और मेमन फैमिली के अन्य सदस्यों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया, तो उसने इंडिया टुडे के एक इंटरव्यू में कहा कि नीरज कुमार ने मुझे एक चूहा बना के रखा हुआ है। मैं जब भी निकलता हूँ अपने घर से, तो मुझे लगता है कि कोई CBI का आदमी, नीरज कुमार का आदमी मुझे देख रहा है या मुझे फॉलो कर रहा है। ये ऐसा उन्होंने वक्त तब इंडिया टुडे के एक कॉरेस्पॉन्डेंट को दिया था। उसके बाद बात खत्म हो गई। कई दाऊद के लोग बाद में भी पकड़े गए, लेकिन फिर एक लंबा अंतराल आया। लेकिन सन 2013 में हम लोगों ने जब स्पॉट फिक्सिंग केस किया क्रिकेट का, तो उसकी कड़ियां सीधे दाऊद इब्राहिम तक गई, और हम लोगों ने उस केस में भी दाऊद इब्राहिम को अक्यूज बनाया। तो जब ये बात प्रेस में रिपोर्ट हुई कि दिल्ली पुलिस ने फिर से दाऊद इब्राहिम को अक्यूज बनाया है और उस पर इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है, तो उस संदर्भ में मुझे लगता है उसने फोन किया कि भाई, इतनी पुरानी बात, आपसे जो भी हम लोग, मेरा संपर्क था वो तो मुंबई के बॉम्ब ब्लास्ट से कनेक्टेड था, लेकिन अब इस इतने सालों के बाद भी आप मेरे पीछे पड़े हुए हो, मेरा नाम क्रिकेट मैच फिक्सिंग में ला रहे हो। तो फिर उसने कहा कि सर, अभी आप 15-20 दिन में रिटायर होने जा रहे हो, अब तो मेरा पीछा छोड़ दो। तो इसमें एक बड़ा वेल सा छिपी हुई एक धमकी भी थी कि रिटायर हो जाओगे तो फिर शायद सिक्योरिटी वगैरह नहीं मिलेगी, तो जरा अब तो संभल जाओ। तो खैर, ये एक, इसके पहले कि मैं उसका कुछ जवाब दे पाता, उसने फोन काट दिया। तो इस घटना को मैंने अपने किताब में भी इसका जी, जिक्र किया है। आपने दाऊद से 3 बार बात की, आपने जिक्र किया अलग अलग। उसी में एक चीज ये भी आती है कि आपके जो सीनियर या दूसरे एजेंसी के लोग हैं, इससे नाराज भी हुए थे कि यार, आप पुलिस कमिश्नर हैं, आप अपना काम करो, ये IB के लिए छोड़ दो, बाकी के लिए छोड़ दो जो ट्रैक कर रहे हैं। तो ये आपस में कई ऐसे ऑपरेशन हुए हैं जिसमें हमारी एजेंसियां आपस में लड़ जाती है। क्योंकि आप CBI में भी रहे, आप दिल्ली पुलिस में भी रहे, कमिश्नर रहे, आप तिहाड़ जेल के भी DG रहे, तो इन चीजों को आपने करीब से देखा। आपस में एजेंसियों की लड़ाई से कितना नुकसान होता है देश को? नुकसान होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि लोग अलग अलग अपना टर्फ बना के कि ये मेरा इलाका है, अगर देश के बाहर कोई ऑपरेशन करना है, अगर दाऊद इब्राहिम को लाना है, तो ये मामला जो है या तो रॉ का है या IB का है, ये CBI नहीं कर सकती है या लोकल पुलिस नहीं कर सकती है। तो इसकी वजह से कई दफ़ा हम लोगों को ये ऐसे ऑपरेशंस में बाधा आती है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लेकिन ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है, आप कहीं भी देखोगे। यहाँ तक कि 9/11 की जब पर जो अटैक हुए थे US में, उस पर भी
उसमें जब इंक्वायरी हुई तो यही पता चला कि अगर CIA और FBI में ये लड़ाई नहीं होती तो शायद 9/11 पर अटैक नहीं होता। तो ये हर जगह वही कहानी है, क्योंकि ये एक ह्यूमन नेचर से इसका सीधा ताल्लुक है कि आप कैसे कर देंगे, ये काम तो मेरा है, और अगर मेरा काम आप कर देंगे और सारी वाहवाही लूट लेंगे तो मेरी बदनामी हो जाएगी या मैं नीचे हो जाऊंगा। इससे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है, और न केवल हिंदुस्तान में, न केवल दिल्ली में, पूरे विश्व में ऐसा होता है। आपकी जानकारी में ऐसा है कि दाऊद को भी लाने के लिए ऐसे 1-2 ऑपरेशन हुए थे जो एजेंसियों की आपसी लड़ाई की वजह से नाकाम हो गए। मुझे बिल्कुल मालूम है, और एक ऑपरेशन तो शायद आपको मालूम है, उसमें अगुवाई मैं ही कर रहा था, और वो बिल्कुल फाइनल स्टेजेस पर जाकर मुझे बताया गया कि आप पीछे हट जाइए, ये आपका काम नहीं है। ऐसा क्यों हुआ था? कौन थे जिनको आगे आना था? अब मैं ये तो नहीं कह सकता, ये तो बहुत ही गोपनीय बात है, हम ये कहना यहाँ ठीक नहीं होगा। एक ऐसे ही ऑपरेशन था जब दाऊद की बेटी की दुबई में शादी थी, जो अभी अपने NSA हैं, और मुंबई पुलिस, इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा हो गया था जिसकी वजह से वो सारे ऑपरेशन को ही ठंडे बस्ते में डालना पड़ा। नहीं, इस बात पर मैं बिल्कुल भी टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे बहुत गहराई से इस बात का कोई जानकारी नहीं है। चलिए, इतना तो आप बता सकते हैं कि कोई उम्मीद है कि कभी दाऊद को इंडिया लाया जा सकता है? बिल्कुल लाया जा सकता है, और लाया जाना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी नाकामयाबी है इंडियन एजेंसीज की, कि वो उसे यहाँ नहीं ले आ पाए हैं। और अगर हम अपने को सुपर पावर कहते हैं या सुपर पावर बनना चाहते हैं, तो ये एक लो हैंगिंग फ्रूट है। मैं तो कहूँगा कि ये दिखाने के लिए, दुनिया में अपनी शक्ति को दिखाने के लिए, ये एक ऐसी चीज है जो हम लोगों को टॉप प्रायोरिटी पर करनी चाहिए। नीरज जी, आप CBI में भी रहते, और इत्तेफाक से भी अगस्त का महीना 14 अगस्त है। मुझे याद है पिछले साल शायद 17 या 18 अगस्त को CBI की टीम मुंबई पहुंची थी सुशांत सिंह राजपूत केस में। 1 साल पूरा होने जा रहा है। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं, और आप बेहतर इसका जवाब दे सकते हैं क्योंकि आप CBI के अंदर की चीजें सब जानते हैं। 1 साल हो गया, लगभग पिछले 7-8 महीने से CBI की कोई भी टीम दोबारा कभी मुंबई नहीं गई, किसी से इंट्रोगेशन नहीं हुआ, किसी को कस्टडी भी नहीं लिया। फॉरेंसिक टीम ने अपनी रिपोर्ट दे दी। उसके बावजूद 1 साल के बाद भी CBI खामोश है सुशांत सिंह राजपूत की मिस्ट्री को लेकर कि मौत खुदकुशी है या कत्ल है। 1 साल, आपको लगता है कि ये कोई ज्यादा लंबा अरसा नहीं हो गया? और चूंकि बीच में कोई एक्शन भी नहीं है, डेवलपमेंट भी नहीं है, फाइल पर चुपचाप खामोशी से बैठे हैं, इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, अगर आप मेरा जवाब बिल्कुल ईमानदारी से सुनना मैं चाहेंगे वही तो चाहूंगा। शायद सुनने वालों को और आपको भी मेरा ये जो मत है वो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन इसमें जो मुझे लगता है, और जो कुछ मैंने उस केस के बारे में पढ़ा है, जाना है, लोगों से पूछताछ की है, ये एक प्लेन एंड सिंपल केस ऑफ सुइसाइड है। प्लेन एंड सिंपल केस ऑफ सुइसाइड। इसमें CBI को शामिल होने की कोई जरूरत ही नहीं थी। अगर मुंबई पुलिस ने इस केस को अच्छी तरह से हैंडल किया होता, और अगर अपने पब्लिक रिलेशंस को, यहाँ फेलियर बॉम्बे पुलिस के पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट की है, अगर लोगों को, मीडिया को डेली ब्रीफिंग करके, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल एक केस था, एक बहुत अपकमिंग प्रॉमिसिंग फेमस फिल्म स्टार की मौत से संबंधित था, लोगों के मन में तरह तरह के सवाल रोज उठ रहे थे, शंकाएं थी। रोज अगर उनको ब्रीफ किया जाता और उनकी शंकाओं को एड्रेस किया जाता तो ये बात यहाँ तक पहुंचती नहीं। और मुंबई पुलिस ने एक और बहुत बड़ी गलती की कि इस केस को उन्होंने फौरन अपने ही क्राइम ब्रांच को दे देना चाहिए था। अगर अपने क्राइम ब्रांच को दे दिया होता तो जिस तरह से लोकल पुलिस उसको कंडक्ट कर रही थी, वो काफी बेहतर तरीके से क्राइम ब्रांच करती और बात वहीं की वहीं खत्म हो जाती। चूंकि PR मिसहैंडलिंग हुई, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव मिसहैंडलिंग हुआ, तो
वो तूल पकड़ती गई और एक समय आया कि इतनी सारी सेंट्रल एजेंसीज को उसमें आना पड़ा। उसी समय बिहार का इलेक्शन था, सुशांत सिंह राजपूत बिहार से आते हैं, उस पर एक वो चुनावी मुद्दा बन गया और तरह तरह की चीजें हुई। उसके बाद ईडी भी पहुंच गया। कोई मुझे ये समझाए कि इसमें एनसीबी भी पहुंचे। ईडी का क्या रोल है। एनसीबी जो कि मतलब जो टनों में ड्रग्स पकड़ने का जिनका काम है, वो 0.003 mg 47 ग्राम्स, हाँ या जो भी है उसको उसके पीछे पड़े हुए हैं। मतलब बहुत ही शर्मनाक चीजें हुई। उसमें सीबीआई भी पहुंच गई। इन किसी भी चीज का कोई जरूरत नहीं थी। ये केवल एट द मोस्ट ये बात मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच तक जानी चाहिए थी और वहीं ये मामला खत्म हो जाता। अगर ऐसा हुआ तो इसके पीछे सिर्फ दो चीजें हैं। मुंबई पुलिस ने अपना पीआर ठीक से हैंडल नहीं किया और नंबर दो, इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बिकॉज ऑफ द इलेक्शंस इन बिहार। There is no other reason why this mess was created and why today we have this, that in the past 1 year CBI has not done anything. It is rubbish. CBI has no business to be involved in a case like this. 37 साल तक आप पुलिस में रहे, क्राइम इन्वेस्टिगेशन का इतना लंबा तजुर्बा आपका, सीबीआई में आप रहे। आपने कहा कि ये बिल्कुल ओपन एंड शट सुसाइड केस, मुंबई पुलिस की चलिए शुरुआती गलती, पॉलिटिक्स भी है, लेकिन अगर इतना इजी, इतना आसान केस, तो देश की नामचीन एजेंसी सीबीआई, एक से एक ज़हीन दिमाग अफसर उसमें काम करते हैं, फिर उनके लिए 1 साल तक ऐसे केस को टालना, फाइलों में दबा कर रखना, ये गलत पूरा मैसेज फिर नहीं जा रहा है। चाहे प्रेशर पॉलिटिकल हो या कुछ और। अब तो पॉलिटिकल प्रेशर का भी मतलब नहीं, क्योंकि बिहार में चुनाव खत्म हो चुका है। तो उस वक्त था कि शायद सुशांत की इससे असर पड़ेगा, अब तो वो भी इशू नहीं रहा। तो फिर ऐसी प्रीमियर एजेंसी एक ऐसे केस पे 1 साल तक कुंडली मार के बैठी हुई है। ये पूरी एजेंसी, वैसी सीबीआई पे बहुत सारी उंगलियां उठती हैं। कहा यह भी जाता है जिस केस को खराब करना सीबीआई को भेज दो। अब लोगों का परसेप्शन ये बन गया। तो फिर ऐसे एक मामूली केस पे, ओपन एंड शट केस पे ऐसा, फिर क्या आपको वजह क्या लगती है? क्योंकि मुझे लगता है इसमें पॉलिटिक्स भी नहीं है। पॉलिटिक्स बिल्कुल है। पॉलिटिक्स बिल्कुल है कि अगर इस बात को ये कह के खत्म कर दिया जाए कि ये सुसाइड था या जो भी है, अगर कोई एक फाइनलिटी दे दी जाए, तो फिर उस समय क्यों नहीं दिया? इस नतीजे पर पहुंचने पर इतना टाइम क्यों लगा? ऐसी क्या चीज हो गई पिछले 15 दिन में या 20 दिन में कि आपने आज बंद कर दिया और पहले नहीं बंद किया? तो अच्छा है कि इसको ठंडे बस्ते में रखो। और मैं ये कंपैरिजन नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे करना पड़ रहा है कि जैसे सुनंदा पुष्कर केस है, उसको लटका के रखा गया है, उसको एक फाइनलिटी क्यों नहीं दी जा रही है? तो कई चीजें जो हैं इस तरह से लटका के रखने में भी कुछ पॉलिटिकल पर्पसेस सर्व होते हैं। इससे ज्यादा स्पष्ट मैं और नहीं बोल सकता। सुनंदा पुष्कर आपने याद दिलाया, जो पॉइजन की बात आई थी, दिल्ली पुलिस ने एफबीआई लैब यूएस तक में भेजा, क्योंकि वो जो पॉइजन है वो पकड़ में नहीं आ रहा था। एम्स फॉरेंसिक टीम ने कई बार किया, पकड़ में नहीं आया। आज इतने साल बीत गए, अभी तक कुछ पता नहीं है। तो इससे एक तो पब्लिक का पैसा भी तो खर्च होता है। अब इतने सारे टेस्ट के लिए अब अफसर भी जाएंगे 2-3 यूएस, वहां रुकेंगे भी, फिर रिपोर्ट का भी इंतजार करेंगे, फिर लेकर आएंगे, लेकिन आखिर में नतीजा तो कुछ है नहीं। सेम यही आप सुशांत केस में इतनी बड़ी टीम गई मुंबई में, करीब महीने भर रुकी, फिर आना जाना, ये खर्चा तो टैक्स पेयर की जेब से जाता है। मुझे लगता है कि सुनंदा पुष्कर केस का जिक्र करके मैंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, कई जो सुनंदा पुष्कर केस में जो मेन मुद्दा है उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, कोई उसकी बात नहीं करता। किसी मीडिया ने आज तक ये पॉइंट आउट नहीं किया है। आप मुझसे पूछिएगा क्या वो मुद्दा है। मुद्दा ये है कि एक तरफ तो हमारा देश मार्स पर रॉकेट दाग रहा है, हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि मार्स पहुंच जाए, और दूसरी तरफ इस देश में ये फैसिलिटी नहीं है कि किसी पॉइजन की हम एनालिसिस कर सकें, यहाँ फॉरेंसिक एनालिसिस कर सकें, और वो उसको एफबीआई में भेजा जा रहा है यूएस। हम लोग को शर्म नहीं आनी चाहिए कि हमारे देश में अभी फॉरेंसिक एनालिसिस की
वो क्षमता नहीं है जो आज से 15 साल 20 साल पहले हो जानी चाहिए थी, और आज भी नहीं है। ये सुनंदा पुष्कर के केस को होने के बाद अब कितना वक्त गुजर गया, आज भी वो कैपेसिटी नहीं है। तो कितने शर्म की बात है। सर, आपको और मेरे एक मिनट, इस मुद्दे को कोई हाईलाइट नहीं करता, इसके बारे में कोई बातचीत नहीं करता, और बातचीत सिर्फ ये है कि क्यों लटका हुआ है, क्यों ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। मेन मुद्दा सुनंदा पुष्कर केस में ये है। आपने पॉइजन की बात की, वो तो बहुत बड़ी बात है कि हमारे यहाँ फैसिलिटी नहीं है। मैं कई ऐसे फॉरेंसिक लैब में जाता रहता हूँ अक्सर, तो आज भी मुझे, अभी लास्ट मंथ की बात बताता हूँ, यूपी, बिहार, उड़ीसा, कुछ ऐसे स्टेट है जिनका उन्होंने नाम लेकर बताया कि वहाँ आज भी रेप के केसेस में वेजिनल स्वाइप झाड़ू के तिनके में लेकर और उसको शीशी में रख के भेज देते हैं आज भी। मतलब हम इस दौर की बात कर रहे हैं, तो फॉरेंसिक और उसमें तो खैर हम लोग बहुत पीछे हैं। अगला जो आपसे एक जानना था, आपके ऊपर 37 सालों में बहुत सारी चीजें आपने की, मैच फिक्सिंग के भी आप हीरो रहे, 93 ब्लास्ट, इवन आप निर्भया ले लें, बहुत ही कम वक्त में आपने सॉल्व किया। लेकिन एक एनकाउंटर को लेकर आपको हमेशा जो है वो घेरा गया। जब आप एक ऑपरेशन में गए थे, आपकी टीम थी बल्कि। ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं मैं कि दो चीजें हैं, एक हैदराबाद जिसमें एक डॉक्टर जो थी, उसके जो रेपिस्ट थे, उसका पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया था। दूसरा विकास दुबे कानपुर वाला मशहूर। ये एनकाउंटर, एक, मैं एक्स पुलिस कमिश्नर, एक पुलिस मैन से जानना चाह रहा हूँ, ये जो आजकल जो एनकाउंटर हो रहा है, एनकाउंटर तो शुरू से ही शक के घेरे में होता है, लेकिन आजकल आपको लगता नहीं है कि कुछ जगहों पे ये एक फैशन सा हो गया कि सीधे अब कहाँ कोर्ट ले जाओगे, अदालत ले जाओगे, लंबा वक्त लगेगा, हाथ का हाथ फैसला कर देते हैं, और ये कितना सही है? देखिए, इनकाउंटर को जस्टिफाई तो मैं कभी नहीं करूंगा। मैं कभी नहीं कहूंगा कि इनकाउंटर होने चाहिए, और खासकर पब्लिकली तो मैं बिल्कुल ही ये स्वीकार नहीं करूंगा। लेकिन अब जैसे दिल्ली में 2-3 दिन पहले इनकाउंटर हुआ है जी। अब उस वहां क्या करता, वहां पुलिस जो पुलिस पार्टी थी वो क्या करती, उस उधर से फायरिंग चल रही है, लोगों को गोली लग रही है, और वो पुलिस वाला क्या करेगा? मैं एकदम आपसे एग्री हूँ, बस आपको बीच में टोक रहा हूँ। यहाँ क्या करेगा, बिल्कुल सही है जवाब है, सामने से गोली चल रही है, आपको चलाना पड़ेगा। लेकिन एक ऐसा एनकाउंटर जो होने वाला और उससे 4 दिन पहले सबको पता हो कि बस ये गाड़ी पलटेगी और इसका एनकाउंटर होगा, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जैसे विकास दुबे के बारे में पूरा देश जानता था कि एनकाउंटर होगा, और वही हुआ। नहीं, मैंने तो पहले ही कह दिया कि मैं इसको कभी भी इंडोर्स नहीं करूंगा, कभी नहीं कहूंगा कि ये अच्छी बात है। और कोई भी सीनियर पुलिस ऑफिसर इस बात को नहीं स्वीकारेगा कि इसको इनकरेज करना चाहिए या ये होना चाहिए। एक आपकी टीम के साथ, हालांकि उसको एनकाउंटर शब्द कहना ठीक नहीं होगा, ऑपरेशन ऐसा हुआ था जिसमें एक बेकसूर मारा गया था, वो जो एक विदेश से किसी को किडनैप करके लाया गया था, दिल्ली में रखा गया था, साउथ दिल्ली में। मुझे ख्याल नहीं आ रहा सर था। आपने किताब में लिखा, किडनैपिंग केस था जो अबू धाबी या, हाँ उसमें वो तो, हाँ, वो तो ऑपरेशन, देखिए ऑपरेशन में, हाँ, ऑपरेशन में वो बेचारा उसको लेके काफी हंगामा हुआ था। एक पड़ोसी था, हाँ, वो जो उसमें 2 बहुत शातिर बदमाश मारे गए थे, और एक जो उनसे क्या कहिएगा, अनजाने में वो उनके उस गिरोह में शामिल हो गया था। तो वो जब पुलिस की टीम ने वहां रेड किया तो वो वहां स्टेयरवेल से कूद गया। जब स्टेयरवेल से कूदा, जो पुलिस की टीम छत पर थी, तो उसने कहा कि कोई, ऐसा लगा कि बहुत शातिर बदमाश जो है वो भाग रहा है, तो उन्होंने ऊपर से उसको स्टेन से उस पर फायर किया और वो वहीं पर ढेर हो गया। बाद में पता चला कि बेशक वो इन लोगों के साथ था, लेकिन उसका कोई ऐसा हार्डन क्रिमिनल नहीं था जो आमतौर पर किसी इनकाउंटर में मारा जाता। उस इनकाउंटर के बारे में सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि वो सीबीआई का फर्स्ट इनकाउंटर है एंड परहैप्स लास्ट इनकाउंटर, क्योंकि ऐसा कभी सीबीआई के साथ नहीं हुआ कि उनके साथ लाइव इनकाउंटर हुआ हो इन अ लाइव किडनैपिंग केस। सीबीआई तो इनकाउंटर केसेस को इन्वेस्टिगेट करती है, और ये एक ऐसा केस है जहां सीबीआई ने खुद इनकाउंटर किया। शायद इसकी वजह ये थी कि दिल्ली पुलिस के भी कुछ लोग इन्वॉल्व थे। नहीं, वो जो केस था वो सीबीआई का था,
और जो उसकी पूरी जिम्मेवारी सीबीआई की है, और चूंकि मैं उस टीम का अगवा था तो मैं पूरी जिम्मेवारी लेता हूँ, और वो जो डेथ जो नहीं भी होना चाहिए था उसकी भी मैं जिम्मेवारी लेता हूँ। क्रिकेट की बात करते हैं सर, आप बीसीसीआई के साथ आपने काम किया लंबे वक्त तक, चूंकि उसके वो भी आप हैं कि जो मैच फिक्सिंग बल्कि स्पॉट फिक्सिंग की बात करूं, इससे पहले मैच फिक्सिंग जब हुआ जिसमें हैंसी क्रोनिया जैसे प्लेयर, बाद में हालांकि मौत भी हो गई, एक्सेप्ट किया, फिर अपने देश में अजहरुद्दीन और वैसे बड़े 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 क्रिकेटरों के नाम आए। फिर आईपीएल में श्रीसंत हो या और भी प्लेयर्स हों, तो जब क्रिकेट में ये सारी चीजें आई, आपको लगता नहीं है कि हिंदुस्तान के जो करोड़ों क्रिकेट फैन हैं, मैं भी बहुत बड़ा क्रिकेट का दीवाना हूं, तो बड़ा धक्का लगा कि यार मैच देखूं, ये तो धोखा है, क्या करूं? धक्का तो लगा, और मुझे उम्मीद थी कि शायद लोगों का इंटरेस्ट और क्रेज जो है क्रिकेट के प्रति वो थोड़ा कम हो जाएगा, उस वक्त कम हो गया था। लेकिन वो थोड़ी समय के लिए हुआ, लेकिन वो क्रेज बढ़ता ही गया और बढ़ता ही जा रहा है। ये मेरे हिसाब से उस घटना को, उस केस को, और भी जो तमाम केसेस करप्शन के हैं क्रिकेट से जुड़े हुए, उस से क्रिकेट फैंस का जो अटेंशन है वो डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। उनको हमेशा याद रखना चाहिए कि कई दफ़ा जो है क्रिकेटर्स मिक्सअप हो जाते हैं बिचौलियों से और सटोरियों से। तो कहाँ क्या मिली भगत है कहना मुश्किल होता है, और खासकर जो T20 का गेम है उसमें तो बहुत होता है। अब लगता है आपको, जब बीसीसीआई में आपने साथ में काम किया एंटी करप्शन बॉडी के तौर पर, अभी भी क्रिकेट में ये सारी चीजें हैं, ये क्रिकेट क्लीन हो चुका है? मैंने इसके बारे में भी एक किताब लिखी है, अभी छपी नहीं है, तो छपने वाली है, तो उसमें ये सब जाहिर हो जाएगा कि अभी क्या सूरत हाल है। आपने एक जगह जिक्र किया था कि आपने जो क्रिकेट को लेके इतना बड़ा ऑपरेशन चलाया, क्रिकेट को क्लीन किया आईपीएल में, हिंदुस्तान में किसी भी बॉडी, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने उसकी तारीफ नहीं की, ना आपको उस मतलब कहा कि अच्छा काम किया। लेकिन जब आप इंग्लैंड गए तो आपने जिक्र किया कि एक क्लब में बैठे थे और कैसे उन्होंने फिर पहचाना और आपको बाकायदा सम्मानित किया कि आपने क्रिकेट को क्लीन किया। तो आपको अफसोस है कि वाकई आपको जो किया उसके लिए यहाँ पे रिकग्निशन नहीं मिली आपको? देखिए, मेरा ये मानना है, और मैंने किताब में भी लिखा है कि हम भारतीयों की एक प्रवृत्ति है कि हम लोग एक दूसरे के अच्छे काम को कभी ना रिकग्नाइज करते हैं, ना कभी उसको इनकरेज करते हैं, ना कभी शाबाशी देते हैं। ये एक विचित्र प्रवृत्ति है हम में। बुराइयों को बहुत हम लोग उस पर गौर करते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन जो अच्छे काम होते हैं उस पर कोई। तो इस केस में जैसे इतना बड़ा हम लोगों ने पर्दाफाश किया और सब कुछ हुआ। मैं दिल्ली गोल्फ क्लब का एक मेंबर हूँ, वो एक स्पोर्ट्स क्लब है ना, वहाँ किसी ने कोई जिक्र किया कि भाई आपने बड़ा अच्छा काम किया या आपकी टीम ने बड़ा अच्छा काम किया। किसी और संस्था ने न बुला के कोई एक लंदन से 60-70 माइल दूर एक छोटे से क्लब में मैं जाके एक कोने में बैठा हूँ, और वहां लोगों में कानाफूसी होती है कि ये वही आदमी है जिसने स्पॉट फिक्सिंग केस किया है, और तुरंत ये बात फैलती है और मुझे बुला के स्टेज पर ऑनर किया जाता है। मैं बहुत ही कैजुअली ड्रेस था, तो मुझे बड़ी शर्म आई कि एक ऐसे क्लब में मैं इस तरह से जाके उस ऑनर को रिसीव कर रहा हूँ। और फिर बाद में मुझे उन्होंने एक ट्रॉफी भी दी। तो ये दिखाता है कि कैसे बाहर के देशों में छोटे से काम को भी लोग रिकग्नाइज करते हैं और उसको एक दूसरे की पीठ थपथपाते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं। दुर्भाग्यवश यहाँ वो कल्चर नहीं है। मैंने अपनी किताब में एक कोटेशन भी दिया है बाइबल से कि वी शुड प्रेज अदर्स लाउडली एंड क्रिटिसाइज देम वेरी म्यूटेडली, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है इस देश में। तो दुर्भाग्य है, और क्या कहेंगे। टाइम चेंज हो गया, आपके जमाने में था, चूंकि 37 साल लंबा अरसा होता है, टेक्नोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस, ये दो ऐसी चीजें आई हैं जिसने क्राइम इन्वेस्टिगेशन सब कुछ बदल कर रख दिया है।
आपको लगता है नई टेक्नोलॉजी के बाद क्रिमिनल के लिए कोई भी क्राइम करके बचना बड़ा मुश्किल हो गया? क्योंकि फॉर एग्जांपल 90% केस तो आजकल सीसीटीवी कैमरा सुलझा देता है, सामने चेहरा आ जाता है, पता चल जाता है ये कहाँ है। बाकी अगर आपने डीएनए करा लिया, खासतौर पर रेप के केसेस में, तो अगर डीएनए हो गया और मैच हो गया तो फिर तो कोर्ट में भी कन्विक्शन रेट अपने आप बढ़ जाएगा। तो आपको लगता है नई टेक्नोलॉजी के बाद पुलिस का काम ज्यादा इजी और अच्छा हो गया? आपने सीसीटीवी कवरेज की बात की, अभी बहुत कुछ काम बाकी है। और अगर मुझे आंकड़े नहीं पता है कि क्या परसेंटेज दिल्ली शहर में कवर्ड है सीसीटीवी द्वारा, चूंकि कुछ ऐसे अपराध जो कि काफी रिपोर्ट होते हैं उसमें ये चर्चा होती है कि सीसीटीवी में वो कैप्चर हो गया और उससे केस सॉल्व हो गया। तो हम लोग समझते हैं कि सीसीटीवी सब जगह फैला हुआ है। मैं ग्रीन पार्क में रहता हूँ, वहाँ एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है। मैं जहाँ जिस रोड पर रहता हूँ, जिस स्ट्रीट पर रहता हूँ, वहाँ सीसीटीवी कैमरे नहीं है। तो अभी बहुत सारा इलाका है जो अभी कवर होना बाकी है। तो लेकिन हाँ, अगर साइंटिफिक मेथड से हमारा काम अच्छा हो जाता, सरल हो जाता है, सुलभ हो जाता है, तो इसमें अच्छी बात है, इसमें खुश होने की बात है। अच्छा, आप खुल के बोल सकते हैं। इस वक्त इंडिया की अगर हम बात करें, खासतौर पर मेट्रोपॉलिटन सिटी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, चेन्नई या स्टेट ले लें, आपको लगता है टॉप 3 बेस्ट पुलिसिंग किस स्टेट या शहर की है? सबसे स्मार्ट पुलिस फोर्स कहाँ की है अपने इंडिया में? कि आप कहेंगे कि मैं चूंकि दिल्ली पुलिस से संबंध रखता हूँ इसलिए मैं दिल्ली नहीं, पुलिस का टॉप नाम। 3 में दिल्ली तो आ ही जाती है, हाँ, लेकिन मैं तो आपसे रैंकिंग जानता हूँ। नहीं, मेरा ये मानना है कि एट द एंड ऑफ द डे, डिस्पाइट ऑल इट्स शॉर्टकमिंग्स, डिस्पाइट ऑल इट्स फेलिंग्स, in terms of professional work, Delhi police is easily the best. And of course, other police forces are no less. Some of the southern cities are very good. Mumbai is very good. I'll rate Mumbai as number 2. Although many people would believe that Mumbai is number 1 and we are number 2 or whatever. But Delhi, Mumbai are clearly the top 2 cities in terms of policing. नीरज जी, आखिरी सवाल। दिल्ली नहीं बल्कि पूरे पुलिस की देश में इमेज इतनी खराब क्यों रहती है आम लोगों की नजरों में? पुलिस की छवि, इमेज, यार पुलिस वाले हैं ये तो रिश्वतखोर हैं, ये बिना पैसे लेके ये नहीं करेंगे। तो इतने बरसों बीत गए लेकिन पुलिस की इमेज लोगों की नजरों में नहीं बदली, लगभग वैसी ही है। देखिए, मेरा मानना है कि कुछ तो ये जो धारणा है या ये जो छवि है, कुछ डिजर्व्ड छवि है, कुछ जस्टिफाइड है कि ऐसी छवि बनी हुई है। और लेकिन जो इसका मेजर पोर्शन है वो अनजस्टिफाइड है। वही बात है, जो अच्छे काम है उसका जिक्र कहीं नहीं होता। वो क्या है कि वो चर्चा नहीं होती। तो वही बात है कि हमारे अच्छे कामों की चर्चा बहुत कम होती है और बुरे काम, अब जैसे मान लीजिए कि एक यही इनकाउंटर हुआ, इतना बड़ा एक जखीरा पकड़ा गया या कुछ हुआ, ये 1 या 2 दिन में सब लोग भूल जाएंगे। लेकिन अगर कहीं गलती से कोई उसी एक्सचेंज ऑफ फायर में कोई मारा जाता, जैसे कि आपने जिक्र किया, तो वो सबको याद रहेगा कि वो वैसा हो गया था। याद रहना भी चाहिए। अगर वो निर्दोष था, अगर वो उसको नहीं मारा जाना चाहिए था, तो उसकी चर्चा होनी चाहिए। आप अच्छे बॉस हैं सर, इसलिए सारे पुलिस वालों को आप क्लीन चिट दे रहे हैं, बचा रहे हैं। खैर, बहुत सारे लोग हैं यहाँ जो शायद आपसे सवाल पूछना चाहेंगे, तो बिल्कुल अब ओपन है, जो भी सवाल पूछना चाहें, बल्कि यही बहुत सारे लोग हैं। गुड इवनिंग नीरज कुमार जी एंड वेलकम टू द चेंबर। मेरा पहला सवाल तो शम्स ने आखिर में पूछ लिया, लेकिन उसको एक आगे लेते हुए कि छवि खराब है, ये अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी पुलिस एकेडमी के फंक्शन में कहा, और ये भी कहा कि अच्छा काम होते हुए भी छवि खराब है। अगर आप जेन्युइनली मानते हैं तो एज ए चेंबर, अगर ये छवि गलत खराब है तो क्या हम आपके सहयोग से इसके बारे में कुछ कर सकते हैं? दैट इज नंबर 1। और सेकंड है कि इसकी आजकल बड़ी चर्चा हो रही है और कई जगह इस पे लॉ बनने की भी बात हो रही है, द बैलेंस बिटवीन ह्यूमन राइट वायलेशन एंड 3rd डिग्री टॉर्चर। इस पे आपका क्या व्यू है? सबसे पहले तो आपने ये जानना चाहा कि एज ए
पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स, आप लोग क्या कर सकते हैं? उसका जवाब मेरा ख्याल है वो इंटरव्यू में ही आ गया है। मेरा मानना है कि जब जब पुलिस अच्छे काम करें, अगर आप उनको बुला के, नॉट इन ऑल केसेस, इन सम रेयर केसेस, इन सम स्पेशल केसेस, अगर आप उनको बुला के पब्लिकली अपने चेंबर में उनको रिकग्नाइज करें उनके अच्छे काम को, तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। अखबार वाले, शम्स जी जैसे लोग भी उसको नोटिस लेंगे और ये भी समझेंगे कि हमें भी कुछ अच्छी बात करनी चाहिए, और उनका भी हौसला बढ़ेगा। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। दिल्ली में पार्लियामेंट पर अटैक हुआ और वहां पर वो केस 72 घंटे के अंदर सारे लोग पकड़े गए और अंत में उसमें हैंगिंग हुई। आपको पता ही है अफजल गुरु की। ये इतना बड़ा केस था। मान लीजिए अगर वहाँ यूएस में वहाँ के पार्लियामेंट पर ऐसा अटैक हुआ होता और वहाँ कोई टीम जाकर पूरे केस को सॉल्व कर देती। मैंने अपनी किताब में इस बात का जिक्र किया है। तो क्या कुछ होता? जो उस पुलिस टीम है, सबसे पहले तो उस पुलिस टीम का जिक्र एक कवर स्टोरी में आता, टाइम और न्यूज़वीक ऐसे मैगजीन्स में। जो पुलिस टीम है उनको वो फीचर करते हैं। उनको वहां व्हाइट हाउस में बुलाया जाता, प्रेसिडेंट के साथ चाय पिलाई जाती, इत्यादि इत्यादि और बहुत सारी चीजें होती हैं। और ऐसा अक्सर होता है। यहाँ क्या हुआ? आज मैं एक बात खुलासा कर रहा हूँ। एक कोई सम ऑफर हुई थी दिल्ली पुलिस को, जबकि केस सॉल्व नहीं हुआ था। अगर आप लोगों ने ये केस सॉल्व कर दिया तो आपको इतने करोड़ रुपए मिलेंगे एज प्राइज। जब सॉल्व हो गया 5 रुपए भी नहीं मिले। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हाँ, हो गया, किसी ने कर दिया सॉल्व, तो करना ही था, इनका फर्ज बनता है। ये जो एटीट्यूड है, उस एटीट्यूड को बदलना है और उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं होनी पड़ेगी। और आप लोग बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोगों को सब पता है। आप लोगों को ये क्षमता है कि आप समझ सकी कौन सा अच्छा काम है और कौन सा अच्छा काम नहीं है। जब जब अच्छे काम हो, बड़े काम हो जो सराहनीय है, उसमें आपको चाहिए कि उनको बुला के उनकी सराहना करें, पब्लिकली उनको अपने चेंबर में बुलाकर उनको शाबाशी दें, उनकी पीठ थपथपाएं। कोई जरूरी नहीं है कि किसी विदेश के किसी क्लब में जाके कोई वहां चर्चा हो रही है लेकिन यहाँ कोई पूछता भी नहीं है। तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। एक तो इससे बहुत फर्क पड़ेगा। और दूसरा सवाल आपका ह्यूमन राइट्स से कनेक्टेड है। ह्यूमन राइट्स का वायलेशन, ये सही है कि पुलिस से बहुत होता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं पुलिस सर्विस में आया था और आज के इस अंतराल में बहुत कुछ बदल गया है और बहुत सुधार हुआ है। और धीरे धीरे जो है वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन कम होती जाएगी। जैसे जैसे जागरूकता बढ़ेगी, जैसे जैसे मीडिया की अवेयरनेस बढ़ेगी और जो अंकुश हैं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पर, और खासकर जो एक आज अगर पुलिस वाला डंडे चलाता है तो तुरंत उसका वीडियो कैप्चर होता है और वायरल हो जाता है और फिर उसके बाद उस पुलिस वाले की शामत आ जाती है। तो वो डंडा चलाने के पहले वो 10 दफा सोचता है। अच्छा भी है, बुरा भी है, लेकिन बॉटम लाइन ये है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन की दिशा में बहुत ज्यादा तरक्की हुई है और भी तरक्की होगी। आपकी जानकारी के लिए, जो आपने कहा, हर 15 अगस्त जो कल है, हमारे चेंबर में जो भी लोकल एरिया के पुलिस वाले होते हैं उनको हम बुला के रिकग्नाइज भी करते हैं और एक छोटा सा अवार्ड और रिवॉर्ड भी देते हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है। और पुलिस के तरफ से अब तो खैर मुझे रिटायर हुए भी 8 साल हो गए हैं, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने कहा ना कि पुलिस वालों का कुछ नहीं हुआ पार्लियामेंट अटैक में, यूएस होता तो ये होता। ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पॉलिटिशियन ले जाते हैं सारा क्रेडिट, इसलिए पुलिस वालों तक बात नहीं आती। वो फोटो खिंचा लेते हैं, वो सब कुछ कह देते हैं। जी, और कोई? नीरज जी, आप डीजी प्रिजन्स भी रहे हैं और मेरे को भी मौका मिला तिहाड़ जेल जाने का, और मैं आपके एक कार्यक्रम में, एक म्यूजिक प्रोग्राम था
एक म्यूजिक प्रोग्राम में मैं गया था जहाँ आप भी थे। तो मैंने देखा आपने काफ़ी कोशिशें की, वहाँ तिहाड़ में काफ़ी सुधार कार्य किए। और एक अच्छी चीज़ ये थी कि वहाँ तिहाड़ के जो कैदी हैं उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि उसकी मार्केटिंग जो है वो कोई बहुत अच्छे लेवल पर नहीं हो रही, जबकि वो तिहाड़ प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छे से अगर मार्केट किया जाए तो वहाँ के जेल कैदियों के लिए बहुत अच्छा है। और दूसरा मैंने एक चीज़ और देखी कि बहुत सारे कैदी ऐसे हैं जो बेचारे जिनको कानूनी सहायता प्रॉपर ना मिलने की वजह से वहाँ पर ज़बरदस्ती रह रहे हैं। तो उस बारे में शायद पता नहीं दिल्ली पुलिस कुछ करती है या नहीं करती, या किसको करना चाहिए, ये थोड़ा सा आप बताएंगे। ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा। यहाँ फिर मैं आपसे गुजारिश करूंगा, पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स से गुजारिश करूंगा कि आप लोग अपने बिजनेस एक्यूमेन की मदद से वहाँ के प्रोडक्ट्स को आप इनकरेज कीजिए। मैंने कोशिश की थी, जो सेलेक्ट सिटी मॉल है वहाँ एक आउटलेट खुलवाया था। और भी अगर आप लोग उनकी मदद करें या उनको ये आइडिया दें, मैं आज ही इस इंटरव्यू के बाद मैं वहाँ के डीजीपी को फ़ोन करूँगा और मैं कहूँगा कि आपसे, आपकी तरफ से कोई ना कोई उनसे संपर्क करेगा। और टीजेज, तिहाड़ जेल प्रोडक्ट्स को अगर आप इनकरेज करें, उनकी मार्केटिंग को, कुछ आउटलेट्स बताएं। यस, यू ऑलरेडी हैव वन। यस, इट बी, दे विल वेलकम इट। और आपको सुन के बड़ी खुशी होगी कि आजकल मेरे समय से शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है, एक ओपन जेल का कॉन्सेप्ट चला है। ओपन जेल के कॉन्सेप्ट में यह है कि जो जिन लोगों ने एक सर्टेन पीरियड जेल में काट लिया हो और उनका रिकॉर्ड कंसिस्टेंटली अच्छा है, उनका बर्ताव, उनका जो आचरण है बहुत प्रशंसनीय रहा है, तो उनको हम लोग छोड़ देते हैं सुबह से शाम तक के लिए। वो जाते हैं और अगर मान लीजिए आउटलेट यहाँ बनेगा तो तिहाड़ जेल से ही एक आदमी आएगा, हो सकता है वो वहाँ का कैदी हो, आकर वो उसको चला के शाम को चला जाएगा वापस जेल में। तो आप न केवल एक आउटलेट देंगे जिससे कि प्रोडक्ट्स की बिक्री हो, बल्कि आप ऐसे लोगों को रोजगार भी देंगे जो कि रोजगार के काबिल हैं और वो अपनी रोजी रोटी खुद कमा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। और एक इनका और भी प्रश्न था कुछ। हाँ, लीगल एड के मामले में कई सारे एनजीओज वहाँ पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो लोग प्रोवाइड करते हैं। तो वहाँ भी जो फंडिंग है, उस फंडिंग में आप लोग बहुत मदद कर सकते हैं। आप में से कई लोग जो तिहाड़ जेल से जुड़े हुए हैं उनको पता है, या जो वकालत से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि वहाँ बहुत स्कोप है काम करने की। और ये बिल्कुल सच्ची बात है कि बहुत सारे लोग खामखा वहाँ पड़े हुए हैं, उनको लीगल एड नहीं मिलता, इसलिए तो आपकी मदद से उनका भी कल्याण हो सकता है। नीरज जी, आपने जैसे क्राइम के बारे में बात कर रहे थे, हमारे देश का सबसे जो वर्स्ट क्राइम पॉसिबल इज क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन। रेप इज द वर्स्ट थिंग पॉसिबल अंडर द सन। पीछे मैंने एक वीडियो घूम रहा था, सऊदी अरेबिया में कोई 3 विदेशियों ने, किसी देश से, वो वहां आए, उन्होंने कुछ रेप कमिट करा, तो पब्लिक स्क्वायर पे जाके उन्होंने उनकी गर्दन काट दी। इसके बारे में आपकी क्या थॉट प्रोसेस है? अगर आपका सुझाव ये है कि यहाँ शरिया इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो वो वैसा कभी नहीं होगा। हम लोग उस लीगल सिस्टम्स को बिल्कुल स्वीकार नहीं करते हैं। हम लोगों का एक अपना सिस्टम है और बहुत अच्छा सिस्टम है। इवन we give an accused a chance to defend himself. He is not guilty till he is proven guilty, and even after that, if he is punished, he is punished as per a code, as per a laid down procedure. So we have to stick to that.
it has stood the test of time and it has served us very well. जी, और So I must thank you for a very nice talk. I had one observation and one question. One observation is that having lived in Delhi, I've seen Delhi police for the last 60 years. When we were growing up, it was really a rough and tough police force where the way they behaved, everyone used to say, don't deal with the police if you can't. Now I find that the Delhi police, even the constable on the street, is substantially better. He is much more patient. He deals Delhi police. I mean, the Delhi citizen is quite an aggressive citizen. What have you been able to do to achieve this slight, much better behavior by at the constable level? You know, when you go for a challan, the normal attitude is manani ladatai todi hai, but I see the police walas behave very much more calmly. So it's, I think it's a great thing, and I'd like to know a little about that. Secondly, in legal situations, how does one speed up? You know, a simple thing like video appearances are not allowed. And this means that people from different states have to come for every case. All the accused have to be present. If someone is ill, he's not there, the case gets postponed. And in the last 2 years with COVID, the legal system has really slowed down. What would you suggest are the 3 or 4 steps which can speed up the legal process? First of all, I must thank you for acknowledging that there has been an improvement in the behavior of an average policeman with the citizens on the streets of Delhi. And I feel it is on account of better training and more better emphasis on good behavior. But it is an ongoing process and this must continue, and there is always room for improvement. That is one. The second thing is speeding up the process, judicial process, and also making use of scientific methods. You will be very happy to know that there has been a sea change. In present times, most of the hearings are taking place through video conferencing. Even today, in High Court, Supreme Court, I'm not too sure about the lower courts, even in district courts, all the hearings are taking place virtually, and even witnesses are appearing virtually. In the Nirbhaya case, I'll give you an example. The expert from Singapore who conducted an autopsy on Nirbhaya after her death in Singapore was done through video conferencing, and it was accepted by the courts. So changes are happening, and many more changes are possible. And you wanted to know my suggestions. The most important suggestion is that we have to ensure that this system of giving adjournments at the drop of a hat, this should be eschewed. This whole practice should be eschewed. And if an adjournment is given, it should be given only on very, very pressing, for pressing reasons. There again, the courts are taking different views and are improving. But this is the main reason that people are able to delay the delivery of justice by getting adjournments. And the second most important thing is witness protection. There is no system of witness protection in this country. So witnesses, they shy away from giving evidence before courts of law for under the threat of reprisals from the side of the accused. And this happens a lot in crimes against women. So if there is witness protection, as it is practiced elsewhere, we will be able to protect the witnesses, and the quality of justice delivery will also improve.
recently we've seen a lot of movies are made on a lot of these cases. जैसे गंगा जल बनी जब भागलपुर blinding case हुआ, आरुषि murder तलवार का case हुआ तो उस पे movie बनी. इतनी सारी movies बनती हैं, and I think a lot of the civil society really enjoys watching them. I just wanted to ask you one thing. When these movies are made, there's a lot of negative role of the police or the investigation which is shown in that. Are the police force or the investigating agencies in these, when these stories are being made, or the producer and director, do they ever contact you and ask you for your input from the police forces? Sometimes they do, and you may have seen Delhi Crime season 1. That was, that was one movie which was in which the police was involved in getting it made. Even then, the portrayal was not very accurate, unfortunately. By the way, season 2 is also based on the case I mentioned right in the beginning, the case of serial crimes by an erstwhile criminal tribe, the Pardi tribe. So season 2 is based on those crimes and how they were solved. And it is based on a story which is part of my second book, The Khaki Files. So that is about to be released before the end of the year. But, once they get the general tendency amongst the producers and directors is that they take a lot of dramatic liberties with the story. So once you have given your story, they twist the whole thing to their advantage to make it more dramatic and to make it more filmy, shall we say. Those liberties they take, and there's no way that we can then later sue them or take them to task. Unlike, for instance, if you portray the army in a negative way, the army takes serious umbrage that how can you do that? Unfortunately, the police in India, they are a state subject. Every police force in the state is a different force. There is no one agency which fights for the police when the police is not portrayed properly or justifiably. So those drawbacks are there. One problem which has not come out at all, and I think that has quite a bit of bearing. Now that you've mentioned our central police forces, you've also mentioned the army and the armed forces, and that's housing. I think the level of housing satisfaction in police departments all over the country, which are state police, is perhaps abysmally low. Many of them have to stay either in slums or unauthorized colonies or somewhere where they can find rent. Of course, we had a great solution at one time that whoever constructs an unauthorized place, even if it's one room extra, give it to a constable of Delhi police, no one will construct it again. But there is need for housing to be provided. I think Delhi police, for instance, has done a great job on the number of police stations and the number of districts. But when it comes to housing, because that means some kind of emotional and security wise, family being looked after, education and Delhi police public school coming in, for example. I think there is some need for providing housing over there. And under the Prime Minister's program of housing for all, there needs to be some leeway made into this, some lead taken into this, because that would improve what was mentioned by another colleague of ours, that the behavior has changed. I think the greater the education, the greater the intake, which is so good now, that you've got doctors coming in, you've got medical professionals, you've got all kinds of professionals coming in. I think behavior will change. Society will recognize that, yes, we have great and good people coming into police service. Undoubtedly, better police housing would go a long way in improving police morale, and most importantly, police's attitude towards public on the roads every day. Because if he has to live in a slum
and when he comes out every morning for giving duty at a police at a traffic point, his behavior, you can imagine what it's going to be like. Again, I'll say that we are doing much better. Delhi police is doing much better than other police forces. The situation elsewhere is abysmally bad. You know, if you go and see the condition of the police stations, I have seen, you know, the roofs are leaking, you know, furniture is not there. Darogaji, you know, sleeps on a khatia, you know, outside the police station, and so on and so forth. You know, no loos. And now imagine there are women constables and women sub-inspectors posted in such police stations, no facilities for the toilets, etc., etc. So elsewhere the situation is very bad. Here we are much better, but there is a lot of room for improvement, particularly for women staff. You know, loose for them, places where they can change, places where they can rest. All that is not taken care of, and we need to pay special attention. And there the role of the police leadership comes in. They should pay special attention to the plight of the women staff. वैसे सर ने अभी कहा, आपने भी कहा था कि मैं हमेशा मतलब पुलिस की नेगेटिव ही स्टोरी करता रहता हूँ, लेकिन एक कंफ्यूजन है वो दूर करता हूँ। पुलिस का बिहेवियर ऐसा बुरा नहीं है। होता क्या है कि जो दिल्ली पुलिस में 60 to 70% जो कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल है वो हरियाणा से आते हैं, तो उनके बोलने का लहजा ही हमें लगता है कि वो हमसे गुस्से में भड़क के बात कर रहे हैं, जबकि वो प्यार से भी बोलते हैं तो लगता है गुस्से में बात कर रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू नीरज साहब, आप आए, आप इतनी सारी बातें की, और पीएचडी का भी शुक्रिया जो इस फ्लोर को जिन्होंने सब कुछ ऑर्गेनाइज किया। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। बेटर कोई सेशन नहीं हो सकता। Thank you so much, Neeraj Kumar ji and Shams Sahib Khan Simra Sahib ji. Thank you so much. Thank you. And now invite Saket to please come and present a gift to them. And Mukesh ji, Saket aap Neeraj ji, and Mukesh ji aap Shams Sahib Khan sahab ko. Shams sahab ko, Khan sahab ko. Request you to please come and present a gift. Yes, Kumar ji. I also invite Rajiv ji. Can I please invite you to present a gift to Shams Khan sahab? Sir, it is my privilege to express a formal vote of thanks on behalf of PhD CCI to Shri Neeraj Kumar ji, former police commissioner, and Mr. Shams Tahir Khan Sahab, senior executive head, Aaj Tak, for being with us here today evening. So that जो issues आपने जिस तरीके से हमारे सामने पेश करे और जो हमारे को समझाए, इतनी guts और ओपन वे से जो आपने हमें समझाया उसको हम रियली अप्रिशिएट करते हैं और आशा करते हैं कि बाकी अफसर भी आपकी तरह फ्रीली फ्रैंकली हम सब से ऐसे थॉट शेयर करते रहें. So one issue you highlighted was speedy and timely justice. There are so many vacancies in the court, and that will be one of our major agendas, that किसी तरह से जो ये कोर्ट की वैकेंसीज हैं वो पूरी करी जाएं और 1 साल के अंदर justice meet out करा जाए. Yes, we are not like the Sharia law which in various countries, but it is a shame when we go abroad or anyone says that we are the rape capital of the world.
वो बहनें बेटियों के साथ जब ऐसी बातें होती हैं तो हमारे को शर्म से अपना सिर झुकाना पड़ जाता है। और हमने सर ये देखा है कि दिल्ली पुलिस डेफिनेटली हैज बिकम आउटस्टैंडिंग। हम कभी उनसे बात करते हैं कि 18-18 घंटे ड्यूटी, और जिस परिस्थितियों में वो काम करते हैं, आई थिंक बहुत ही सराहनीय है, एंड वी हाईली अप्रिशिएट फॉर द आउटस्टैंडिंग वर्क दे आर डूइंग। एंड ऑफ कोर्स role model commissioners like you, we highly salute, and that is why, you know, it is a privilege for us to have you here with us today. Your suggestion regarding appreciating the good deeds of Delhi police, we shall definitely implement 100%. और शम्स ताहिर खान साहब, आपका स्टाइल तो लाजवाब है। जिस तरह से आप ये क्वेश्चन पूछते हैं, बॉय, हम जो इस टाइप के प्रोग्राम हम करते हैं, हमको एक नहीं बड़े प्रोग्राम इस टाइप के करने पड़ेंगे। आप बहुत ही बढ़िया हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी आल्सो टू एक्सटेंड our gratitude to all the distinguished participants, our former presidents, managing committee members, to our president Mr. Sanjay Agarwal, vice president Saket Dalmia ji, हमारे सेक्रेटरी जनरल सौरभ सन्याल, और हमारे साथ जो सिलेक्ट सोशल मीडिया, वो जो अपना सोशल डिस्टेंसिंग और लिमिटेड क्राउड के रूल्स फॉलो करने के लिए हमारे साथ जो मौजूद आलोक श्रीराम जी, करुणा जी, अरशद भाई मैडम, and Rajiv Talwar ji, and everyone, really wonderful having you here with us. Thank you. And of course, again, thank you to the audience. I have also to thank the prime sponsor, which is my company, Multani Kuka. But usko thank you karna इसलिए बहुत आवश्यक है क्योंकि इस टाइप के, क्योंकि हमारा PhD चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एक बिजनेस चेंबर है, लेकिन हम PhD चेंबर को एक PhD चेंबर फैमिली और परिवार भी बनाना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि और हमारे जो मेंबर हैं ऐसे प्रोग्राम्स को स्पॉन्सर करें, सपोर्ट करें, ताकि इसकी फ्रीक्वेंसी और ज्यादा हो। और हमारी आउटस्टैंडिंग जो अपनी लाइब्रेरी कमेटी की चेयरपर्सन है नीतू जी, जिन्होंने आज का मेन ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा, उनकी टीम मेंबर्स हैं प्रिया हिंगोरानी जी, मुकेश गुप्ता जी, शशि अग्रवाल जी। तो इनको और हम प्रोत्साहन करें कि भैया 6 महीने में नहीं, हर 15 दिन में ऐसे बढ़िया उत्तम प्रोग्राम करते रहें। We are on the eve of the 75th day of independence tomorrow. We are all proud of our Indian democracy, and we here at PhD are committed कि हमारा देश बढ़े, हमारा चेंबर बढ़े, हमारे मेंबर बढ़े और हमारा स्टाफ आगे बढ़े। तो वी आर कमिटेड टू टेक द नेशन फॉरवर्ड एंड एवरीवन। इन शब्दों के साथ मैं आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं। थैंक यू अगेन। गॉड ब्लेस यू।